हेलो बच्चों। बच्चों हम चैप्टर डिस्कस कर रहे थे ह्यूमन आई इन कलरफुल वर्ल्ड और अब तक हमने प्रिज्म के बारे में पढ़ लिया था। आज हमारा कॉन्सेप्ट टुडेज कॉन्सेप्ट इज रेनबो। यू ऑल हैव सीन द रेनबो इन द स्काई व्हेन द सन इज शाइनिंग एंड इट इज रेनिंग एट द सेम टाइम। ओके, whenever you all have observed the rainbow when sun is shining. Okay, जब क्या हो रहा है, सनलाइट आ रही है and at the same time raining also is there, है ना, बारिश भी हो रही है। उस कंडीशन में you all have watched, you all have seen the rainbow. What is the rainbow? Rainbow is a natural arc formed by the dispersion of light. You all have learned about the dispersion of light by the prism. Whenever a white light is passed through the prism, it is splitted into its corresponding 7 color. So here in the formation of rainbow, rainbow is again a kind of dispersion of light, and the tiny water droplets of the rain acts as tiny prism. There are so many prism produced during the time of rain, and each water droplet is acting as a prism, and when light or when sunlight passes through that tiny prism, it will scatter, it will scatter, not scatter, it will split into its constituent 7 color. This is called dispersion, and the shape of tiny prism is just like arc. The point at which, or the point from which light is dispersed, after the producing the final image, you will get an arc of the image, okay, due to that water droplet, and rainbow is formed. So how will you define the rainbow? We can say the rainbow is an arc of 7 colors visible in the sky. Okay, what is rainbow? Rainbow is an arc. Arc समझते हैं, you all know that curved surface, okay, of 7 color visible in the sky, which is produced by dispersion of sunlight. It is produced by dispersion of sunlight by raindrop in the atmosphere. So raindrop are acting as a prism, where each drop acts as tiny prism. Okay, let's see how rainbow is formed. One thing you should keep in your mind, that the rainbow is always formed in the opposite direction of the sun. If sun is shining in the east, the rainbow will produce in the west. Okay, so rainbow is always formed opposite to the sun. यानी कि अगर आप रेनबो को देखना चाहते हैं, देन आपका जो बैक पोर्शन है वो सन की तरफ होगा, फ्रंट पोर्शन रेनबो की तरफ होगा। एंड द सेकेंड कंडीशन, when it's raining and sunshine at the same time, जब वाटर नेचर में हो, मॉइस्चर हो, क्लाउडी टाइम में भी आपको मिल जाएगा रेनबो, क्योंकि उसमें भी मॉइस्चर होता है। कहीं वाटरफॉल हो रहा है, whenever you will see any kind of waterfall, okay, and sun is shining at the same time, then you will also get the rainbow, है ना। Most of the student are, जनरली स्टूडेंट की टेंडेंसी होती है कि ये जब माही डैम वगैरह को ऑब्जर्व करने जाते हैं, जब डैम से पानी गिरता है, तो उस हाई स्पीड वाटर में क्या हो रहा है, बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स नेचर में फैल जाते हैं और वो भी रेनबो का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ओके, हिंदी में रेनबो को बोलते हैं इंद्रधनुष, बिकॉज ये आर्क शेप का होता है, एंड इंद्र इज द गॉड ऑफ रेन, बारिश के टाइम पे होगा। लेट्स सी कि क्या क्या फिनोमिना होंगे रेनबो के फॉर्मेशन में, ध्यान से समझिए। Whenever the sunlight will pass through the tiny prism, or what is prism here, water droplet. Okay, first medium change हो रहा है, तो ये लाइट जो है वो क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट यानी कि बेंड होगी, and in the water droplet it will disperse into its 7 color. 7 कलर में इसका क्या हो जाएगा बच्चों, डिस्पर्जन हो जाएगा। डिस्पर्जन होने के बाद ये लाइट यहां से नहीं निकलेगी, यहां पर एक फिनोमिना होता है, दैट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इसकी सरफेस कम होने की वजह से यहाँ पे जो एंगल है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो इस तरीके से हो जाएगा, वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाएगा।
तो लाइट जो है वो आगे रिफ्लेक्ट होने के बजाय रिफ्लेक्ट हो जाएगी, द लाइट विल रिफ्लेक्ट, और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इधर आ जाएगी। बच्चों ये फिनोमिना क्या कहलाएगा? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये ध्यान रखेंगे। आफ्टर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अब लाइट वापस से क्या हो जाएगी? रिफ्रैक्शन होगा, बेंडिंग होगी, और यहां से व्यूअर इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, हम इसको देख रहे हैं। तो इसकी जो इमेज है वो कहां बनेगी? इधर कहीं आर्क बनेगा, दिस इज डेमो। किसकी इमेज बनी? इस आर्क की इमेज बनी, और इसी आर्क में यू विल गेट दिस 7 कलर, है ना? In this arc you will get this 7 color. This is known as rainbow. I hope it is clear to all of you. Okay? तो ये तो बच्चों बात क्लियर होगी कि रेनबो का फॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा है। तो बेसिकली रेनबो में in your examination you will ask about the rainbow and what are the 3 phenomena which occur in the formation of rainbow. So student, what are the 3 phenomena? The first, light is refracted. So first phenomena is refraction, second one is dispersion, third one is total internal reflection. Total internal reflection की लाइट उसकी शेप की वजह से अंदर रिफ्लेक्ट हो जाएगी, है ना, और बाउंस होके वापस से इसी पाथवे पे लौट आएगी। So there are so many water droplets at the time of rain formation. जब भी रेन फॉर्मेशन होगा वाटर ड्रॉपलेट्स का अमाउंट बहुत ज्यादा है, so many water droplets are there. So हर वाटर ड्रॉपलेट छोटा छोटा आर्क बनाएगा एंड वो कंबाइन होके बिगर आर्क में कन्वर्ट हो जाता है एंड यू विल गेट अ बिगर रेनबो, जो कि 7 कलर आपको वही फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंगली नजर आते हैं। और ये एक अच्छे से अगर डिस्पर्शन होगा देन वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड का प्रॉपर आपको सीक्वेंस नजर आएगा। ओके, नाउ द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो शोज दैट द लाइट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर। रेनबो का फॉर्मेशन ही बच्चों हमको ये बता रहा है कि जो व्हाइट लाइट है, सनलाइट, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ओके स्टूडेंट्स, तो बेसिकली जो कॉन्सेप्ट हमको समझना था ये बात हो गई है। रेनबो पे बना दीजिए। Now students, we will talk about the atmospheric refraction. Normal refraction you have seen about the concept of normal refraction. Okay, what is the refraction? The bending of light on passing from one medium to another medium. Okay, now the concept is atmospheric refraction. That simply means that the refraction of light by the Earth's atmosphere. And what is the cause of refraction? You all know that. The cause of refraction, that means the change in speed of light in various medium. So one medium is considered to be optically rarer and another will be optically denser. So here the optical density of various layers of earth are different. Okay, what are different layers of the earth? The initially troposphere, stratosphere, mesosphere, ionosphere, exosphere. There are total 5 layers. On moving from earth to the upper atmosphere, the optical density of air decreases. So upper medium is optically rarer and the lower medium is optically denser. जब हम नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती जाएगी। जो नीचे वाली लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, these are optically denser, और ऊपर वाली लेयर्स हैं, आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, these are optically rarer, क्योंकि एयर का अमाउंट कम होता जाएगा। So whenever light will come from upper layer to lower layer, it always suffers the refraction. वो हमेशा रिफ्रैक्शन होगा, लाइट की बेंडिंग होगी, because the light passes from rarer to denser. हर पॉइंट पे लाइट जो है रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ आ रही है। ओके, जैसे कि ये ऊपर आयनोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, तो हर पॉइंट पे लाइट जो है वो क्या होगी, ये ऊपर वाली लेयर रेयर, देन जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे डेंसर होती जाएगी। ओके, सो एट ईच पॉइंट लाइट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। हर पॉइंट पे जो लाइट है बच्चों वो किसकी तरफ बेंड होती जाएगी? टुवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ बेंड होती जाएगी। दिस फिनोमेना is called refraction due to the atmosphere. What is the cause of refraction here? Atmosphere, or change in optical density of the
atmosphere. Okay, and some local conditions like temperature and pressure also play important role. कि अलग अलग लेयर्स में टेम्परेचर और प्रेशर की कंडीशन अलग अलग हो जाएगी, तो वहां पर भी ऑप्टिकल डेंसिटी में आपको क्या देखने को मिलेगा, यू विल ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ऑप्टिकल डेंसिटी. ओके, सो जब भी लाइट अपर से लोअर मीडियम की तरफ आएगी यानी कि एटमॉस्फेरिक लेयर्स में, हर पॉइंट पे इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ द एटमॉस्फेयर. दिस फिनोमेना इज नोन एज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. ठीक है बच्चों. ओके, सो फर्स्ट यू शुड राइट द डेफिनेशन. And what is the definition? The phenomena of bending of light on passing through Earth's atmosphere is called atmospheric refraction. Why? Because upper layer of Earth's atmosphere are rarer, that means optically rarer as compared to lower layer. Further, the local conditions like temperature, etc. also affect the optical density of Earth's atmosphere. It is called atmospheric refraction. Basically लाइट क्या हो रही है बच्चों, बेंड हो रही है. पहले तो आप ये डेफिनेशन लिखेंगे. Now there are some effect related to the atmospheric refraction. The first effect is stars seem higher than they actually are. Stars की जो पोजीशन है, इनकी एक्चुअल पोजीशन से हमको क्या नजर आती है, थोड़ी हायर पोजीशन पे नजर आती है. बच्चों क्या कॉन्सेप्ट है समझिए. दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार. व्हेनेवर लाइट कम फ्रॉम द स्टार टू द ऑब्जर्वर, हम तक जब लाइट आएगी, सो एट ईच पॉइंट लाइट विल बेंड. लाइट नॉर्मल आई, फिर यहां से क्या हो जाएगी, बेंड होती जाएगी टुवर्ड्स द नॉर्मल. हर पॉइंट पे लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. ओके, सो एट ईच पॉइंट लाइट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल ऑन प्रोड्यूसिंग द फाइनल रिफ्लेक्टेड रे. हमको पता है कि जब भी हम इमेज बनाते हैं तो इमेज हमेशा स्ट्रेट लाइन में ही बनती है. ये बात दिमाग में फिक्स करिए. लाइट कोई बेंड हो रही है तो कभी भी इमेज हम बेंड लाइट में नहीं बनाएंगे. द इमेज इज ऑलवेज फॉर्म इन द स्ट्रेट लाइन. तो इस लाइट को फाइनल जहां से बेंडिंग हो रही है वहां से हमको स्ट्रेट ले जाएंगे, और स्ट्रेट ले जाने पर यहां पर कहीं इमेज का फॉर्मेशन होगा स्टार की. हम यहां बना देते हैं. सो दिस इज द अपरेंट पोजीशन. ओके, तो ये स्टार की क्या हो जाएगी, अपरेंट पोजीशन हो जाएगी. या इधर बना के देख लेते हैं. ये एक्चुअल पोजीशन थी और हर पॉइंट पे लाइट बेंड हो रही है. सो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे जहां से आ रही है उसको प्रोड्यूस करने पे दिस इज एक्चुअल एंड दिस इज अपरेंट जो हमको नजर आ रहा है. दैट इज ड्यू टू द बेंडिंग ऑफ लाइट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. लाइट की बेंडिंग हो रही है बच्चों. किसकी वजह से बेंडिंग हो रही है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट की बेंडिंग हो रही है. ओके, इसका जो कंटेंट है नोट्स में मैं दे दूंगा आपको. अभी तो आपको खाली इस वीडियो में समझना है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के क्या क्या इफेक्ट्स हैं. ओके, बना लीजिए. So student, the second effect of atmospheric refraction is twinkling of stars. However, stars twinkle but planet do not. तो पहले तो हम समझते हैं ट्विंकलिंग ऑफ स्टार क्या है. वी ऑल नो दैट ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन द बेंडिंग ऑफ लाइट टेक्स प्लेस. सो व्हेनेवर लाइट विल बेंड इट इंटेंसिटी डिक्रीजेस. जब भी लाइट बेंड होगी तो उसकी इंटेंसिटी थोड़ी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. फिर जैसे मीडियम में स्ट्रेट ट्रैवल करेगी फिर उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी. देन इट विल अगेन बेंड, फिर उसकी इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. तो बार बार एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से उसकी इंटेंसिटी कम होती है, फिर बढ़ती है, कम होती है, बढ़ती है. ये हमारी आंखों को अपीयर होता है. दिस इज नॉन एज ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स. तारों का क्या करना, ट्विंकल करना. बचपन में पोएम पढ़ी होगी, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. तो उसके ब्राइटनेस में हमको कमी और इंक्रीजमेंट नजर आएगा. सो क्या बताएंगे, बिकॉज द स्टार लाइट रीचिंग अवर आईज इंक्रीजेस एंड डिक्रीजेस कंटिन्यूअसली. व्हाई? ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. When the star light increases, it looks bright, and when decreases, it looks dim, called twinkling of star. और बच्चों ये पूरा फिनोमिना किसकी वजह से है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन. Now, the second one is planet क्यों नहीं ट्विंकल होते हुए अपीयर होते हैं. तो बच्चों ध्यान रखेंगे कि प्लैनेट्स आर क्लोजर टू द अर्थ. स्टार अर्थ से बहुत दूर है बट प्लैनेट अर्थ के बहुत पास है.
तो अगर हम साइज वाइज देखते हैं तो प्लेनेट हमको स्टार के कंपैरिजन में काफी बिगर नजर आएगा। एक्चुअली है नहीं, बट क्लोज होने की वजह से क्या होता है, प्लेनेट जो है अर्थ को काफी बिगर नजर आता है और ये स्टार काफी छोटा होता है। सो स्टार इज कंसिडर्ड टू बी पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और प्लेनेट में देयर आर सो मेनी पॉइंट सोर्स, बहुत सारे हम पॉइंट सोर्स एज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हर पॉइंट से लाइट आएगी और हर पॉइंट आई मीन ये जब अर्थ के पास में हो जाएगा, सो बहुत सारे पॉइंट सोर्स हम कंसीडर कर सकते हैं। तो जो पोर्शन अर्थ के सामने है उसमें लाइट की इंटेंसिटी में एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से थोड़ा बहुत हमको चेंजेस देखने को मिलेगा। ओके, बट इतना पोर्शन अर्थ के सामने है तो इतना चेंजेस हमको देखने को मिलेगा। देन रेस्ट ऑफ द पोर्शन उसकी लाइट हमको क्या नजर आएगी, कांस्टेंट नजर आएगी। तो सपोज 10 से 20% की इंटेंसिटी चेंज हुई, बट 80 to 90% रिमेन सेम। सो ओवरऑल अगर हम कंसीडर करेंगे तो क्या नजर आता है, उसकी ब्राइटनेस एक जैसी ही हमको नजर आएगी, उसमें हमको चेंजेस नजर नहीं आते हैं। तो हमको ये नजर आता है कि प्लैनेट तो अपनी जगह पे फिक्स है, ये ट्विंकल नहीं कर रहे हैं। सो हाउएवर प्लैनेट आर क्लोज टू द अर्थ, सो दे अपीयर्स बिगर। Planet can be considered to be made of many point source of light. बहुत सारे लाइट के पॉइंट सोर्स माने जा सकते हैं। Due to atmospheric refraction, when some point source looks brighter, कुछ पोर्शन जो अर्थ के सामने look brighter and other appear dimmer, बाकी सभी कैसा नजर आएगा, उसकी लाइट की इंटेंसिटी तो सेम ही रहेगी, क्योंकि वो लाइट तो हम तक पहुंच नहीं रही है या उसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन हम ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। Therefore, overall brightness of planet looks all same always. तो overall brightness planet की क्या नजर आएगी, आपको सेम ही नजर आएगी। तो हमको लगता है कि ये ट्विंकल नहीं कर रहे हैं। ओके बच्चों, ये भी बना लीजिए। स्टूडेंट, नेक्स्ट जो हमारा कॉन्सेप्ट है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन पर बेस्ड, दैट इज एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। बच्चों सनराइज कहां से होता है, आपका आंसर होगा ईस्ट से, ईस्ट। बट वो जगह कौन सी है जहां से सनराइज होगा, दैट पर्टिकुलर पोजीशन इज नोन एज होराइजन। होराइजन इज प्लेस वेयर अर्थ एंड स्काई, जो कि आपको क्या नजर आते हैं, मिले हुए नजर आते हैं। नेचुरली ऐसा होता नहीं है, बट ऐसा अपीयर होगा। सो दिस इज होराइजन। जब सन इसके नीचे चला जाएगा देन इट्स कॉल्ड सनसेट, और जब इसके ऊपर रहेगा देन इट इज कॉल्ड सनराइज। ओके, अब देखते हैं कि होराइजन से एडवांस सनराइज और डिलेड सनसेट का क्या कॉन्सेप्ट है। व्हेनेवर सन इज बिलो द होराइजन, होराइजन के नीचे। ओके, दिस इज द एक्चुअल पोजीशन ऑफ सन बिलो द होराइजन। अब हम यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं बच्चों। अब इसकी लाइट जब हम तक आएगी तो हमको पता है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट बेंड होती हुई नजर आएगी। सो ये लाइट बेंड होती हुई नजर आएगी। ओके, लाइट के बेंडिंग। और हम जब इसका क्या करेंगे, फाइनल रिफ्रैक्टेड रे को प्रोड्यूस करेंगे, तो इसकी इमेज कहां, स्ट्रेट लाइन में हमको इसकी इमेज यहां नजर आएगी। सो जब सन कहां है, होराइजन के नीचे, अपरेंट पोजीशन अबव द होराइजन। ओके, तो स्टूडेंट की जब सन जो है कहां है, बिलो द होराइजन, तब भी उसकी इमेज हमको कहां नजर आएगी, अबव द होराइजन, होराइजन के ऊपर नजर आएगी। तो सन हमको राइज होता हुआ नजर आ जाएगा, बट एक्चुअल में सन अभी होराइजन के नीचे ही है, जो बाउंड्री बनाई गई है उसके नीचे ही प्रेजेंट होगा। सो दिस इज कॉल्ड एडवांस सनराइज। और ये कितने टाइम पहले होता है, 2 मिनट बिफोर। सनराइज होने के 2 मिनट पहले ही उसकी इमेज हमको नजर आ जाती है। एट द सेम टाइम डिलेड सनसेट, जब सन सेट हो जाता है वापस कहां चला जाएगा, होराइजन के नीचे। ओके, एट द टाइम ऑफ सनसेट फिर हमको उसकी इमेज नजर आएगी। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से फिर लाइट हमको बेंड होती हुई नजर आएगी। ओके, और फिर उसके फाइनल रिफ्रैक्टेड रे प्रोड्यूस करने पे सन की इमेज कहां नजर आएगी, अबव द होराइजन। तो सन जबकि कहां चला गया है, होराइजन के नीचे चला गया है, फिर भी उसकी अपरेंट पोजीशन कहां नजर आ रही है, अबव द होराइजन। सो दिस कॉल्ड डिलेड सनसेट।
सनसेट हो जाने के बाद भी सन हमको नजर आएगा। कब तक? 2 मिनट, है ना, 2 मिनट का टाइम। तो ओवरऑल 2 मिनट पहले हमको नजर आ जाता है और 2 मिनट बाद तक नजर आएगा। ओके, सनराइज और सनसेट के टाइम। दिस इज ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। ओके, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। ओके बच्चों, एक कॉन्सेप्ट और है इसमें एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। सन अपीयर्स ओवल एट सनराइज एंड सनसेट बट सर्कुलर एट नून। यहां पे मैं लिख देता हूं, सन अपीयर्स ओवल एट सनराइज एंड सनसेट but appears circular at noon। अब देखिए बच्चों, सनराइज और सनसेट के टाइम पे सन का शेप हमको कैसा नजर आता है? ओवल। और शेप में जो भी चेंजेस आते हैं ड्यू टू द रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे कौन सा रिफ्रैक्शन है? एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। सो एट द टाइम ऑफ सनराइज एंड सनसेट सन लाइट को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ रहा है बिकॉज सन की पोजीशन कहां है? दैट पॉइंट ऑफ होराइजन। सो होराइजन से मैक्सिमम डिस्टेंस लाइट को ट्रैवल करना पड़ रहा है और इस मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग में लाइट की मैक्सिमम बेंडिंग हो जाएगी ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से दैट्स व्हाई उसका शेप हमको कैसा नजर आएगा? ओवल। हमने रिफ्रैक्शन के इफेक्ट को पहले भी समझ लिया है कि रिफ्रैक्शन की वजह से शेप में चेंजेस नजर आते हैं। बट एट द टाइम ऑफ नून, है ना, आफ्टरनून के टाइम पे सन ओवरहेड होता है। सन की पोजीशन में हम कहां देखते हैं? जस्ट अगर उसकी पोजीशन देखें, हम यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हमारे ऊपर है। ओके, सो लाइट को मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ रही है। हम ये कह सकते हैं लाइट सीधे परपेंडिकुलर पे ट्रैवल कर रही है, नॉर्मल पे ट्रैवल करती है। और रिफ्रैक्शन का ये भी लॉ हमने देखा था कि व्हेनेवर लाइट पास नॉर्मली देयर इज नो बेंडिंग ऑफ लाइट। तो पहली बात देखते हो, लाइट को मिनिमम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा और लाइट परपेंडिकुलर पे आएगी, नॉर्मल पे आएगी। सो इट हैज टू ट्रैवल मिनिमम डिस्टेंस और परपेंडिकुलर पे आने पे क्या हो जाएगा? लाइट की बेंडिंग नहीं होती है, लाइट स्ट्रेट पास हो जाती है। तो यहाँ पे लाइट स्ट्रेट पास हो जाने की वजह से एट द टाइम ऑफ नून सन ओवरहेड है। इस केस में सन का शेप हमको सर्कुलर ही नजर आएगा, उसमें बेंडिंग नहीं है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन नहीं है, तो सन आपको ओवल नजर नहीं आएगा, फ्लैटेंड नजर नहीं आएगा। क्लियर बच्चों? सो दीज आर द इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। कुछ पॉइंट जो हमने खाली डायग्रामेटिक तौर पे समझा दिए हैं, दिस ऑल विल गेट इन योर नोट्स, है ना, ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। ओके, ये भी डायग्रामेटिकली आप इसको रिप्रेजेंट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट, तो आज का कॉन्सेप्ट हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट एक लेक्चर बनेगा और ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, जिसमें हम पढ़ेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड व्हाट आर डिफरेंट इफेक्ट बेस्ड ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।